السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے عذاب جہنم کا واقعہ۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی، پریشانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا ابا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کہ میں تو دیکھتی رہی آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے جو جواب دیا میرے تیرے دماغ میں ساری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا لگتے جگر تجھے کیا معلوم ہے، کل قرآن کریم کی ایک آیت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، جو عذاب جہنم کا اتنا دردناک عذاب کی خبر قرآن سے سن کے آیا ہو، کالی کملی والے کی زبان سے سن کے آیا ہو، اللہ کی کتاب میں سے سن کر آیا ہو۔ لخت جگر ہو میری دھی تو ہی بتا اسے نیند کیسے آئے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے آج نمازی نہیں ڈرتا، حاجی نہیں ڈرتا، پیر فقیر درویش نہیں ڈرتا، افسر نہیں ڈرتا، ڈاکٹر نہیں ڈرتا، چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت اکڑے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے اکڑے رہو، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، جو پروردگار عالم کے کلام پہ یقین نہیں کرتا، جسے اپنی موت کا یقین نہیں، جسے قیامت پہ یقین نہیں، جس کے دل میں یہ بات نہیں میرا نام ہے اعمال میری ساتھ ساتھ چلے گا، فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو۔ ان بطش ربک لشدید، میں پکڑوں گا پھر اسے پتا چلے گا میری پکڑ کتنی سخت ہے۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، کالی کملی والے ہو کر ساری ساری رات رو رو کے گزار دی، آنسو بہا بہا کے گزار دی۔ آج میرا تیرا یہ حال بنا ہوا ہے، ساری زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہی ہیں زمین پہ، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا، تو تو بڑا بہادر ہے، تو تو بڑا جرت والا ہے، تو تو بہت ہمت کا مالک ہے، تجھے تو روتا دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، رنگ فق ہوتا جاتا ہے، سارے بدن پہ کپ کپی تاری ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ وضو کے بعد کسی نے پوچھ لیا اللہ والے او شیر خدا او نبی کے داماد کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے تکلیف تو کوئی نہیں، پر تم کیا جانو کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ مسجد کا احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، ڈرتا ہوں یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤں گا۔ بادشاہوں کے دربار میں لوگ ڈرتے ہیں، شیشن کی عدالت میں ڈرتے ہیں، تھانے میں ڈرتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈرتے ہیں۔ خدا کہتا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں احکم الحاکمین ہوں، تم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
जो सबक भी दिया सहाबा कराम को, उसको इतना पकाया, उसको इतना पुख्ता किया कि सारी जिंदगी उसको भुलाया ही कभी नहीं। और ये नहीं कि हजरत सहाबा कराम को कुछ और तालीम दी, अपनी आल को कुछ और तालीम दी। अजीब तालीमात हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की। इतना खौफे खुदा, इस कदर गलबा अल्लाह की नाराजगी का था कि अगर वो नाराज हो गया तो मारा जाऊंगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। कुरान करीम ऐलान करता है, एक आदमी के अंदर एक आदमी का चमड़ा 70 जगह तय जलती जा रही है, पीछे नई बन रही है, आगे जल रही है, पीछे नई बन रही है। सर से लेकर पैरों तक 70 तय जलने वाली, नई बनने वाली बैक वक्त में जारी है, चल रही है। लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि अज़ाब चखाया जाए। और जालिम कमीने, तेरे घर में मेरा कुरान था, तेरी मस्जिद में मेरा कुरान था, तेरे जुमे में मेरा कुरान था, तेरी नमाज में मेरा कुरान था, जब तेरी मां मरने लगी मेरा कुरान था, जब छोटे बड़े मरने लगे कुरान था, गलियों में कुरान था, दरसों में कुरान था। पर जालिम तूने अपनी जिंदगी में हर चीज को जगह दे दी, फैशन को जगह दी, लिबास के फैशन को जगह दी, अंग्रेजी लिबास को जगह दी, हिंदुओं सिखों के अकायद को दिल में जगह दी। और जालिम, अगर तूने अपने घर में दिल में जगह ना दी तो मेरे कुरान को कोई जगह ना दी। आज तुम्हें ये बहकाते हैं मौलवी, मेरी आदत नहीं ये बात करने की, मगर कहता हूं, लड़ाई झगड़े में फंसाकर बर्बाद कर दिया कौम का बेड़ा। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौम आद कौम समूद की बस्तियों के इलाके में से सहाबा का लश्कर लेके गुजर रहे हैं, काफिला लेके गुजर रहे हैं। अंदाजा लगाओ उस काफिले का क्या कहना, उस लश्कर की अजमतों का क्या कहना, जिसका कमांडर इन चीफ काली कमली वाला हो। काफिला गुजर रहा है कौम समूद कौम आद की बस्तियों पर, जिन पे पहले खुदा का अजाब आ चुका, खुदा का कहर आ चुका। एक कौम का ये हाल बना, अल्लाह पाक के फरिश्ते, मुकर्रब नूरी फरिश्ते, सरदार फरिश्तों का जिब्रील अमीन ने चीख मार दी। कुरान कहता फ़अख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए, सारी कौम मर गई। ये तो खुदाई निजाम है ना। तुझे अपने हाथ पे यकीन है कि मैं यूं कर सकता हूं, तुझे अपने पिस्तौल पे, अपनी बंदूक पे यकीन है कि मैं यूं चलाऊंगा तो गोली चल जाएगी। तुझे खुदा के कहर पे यकीन नहीं कि वो जरा सा इशारा करेगा तो बर्बादी हो जाएगी। उसकी जात पर हमारा यकीन कोई नहीं, अमली तौर पर यकीन नहीं, जुबान की नोक से कहते हैं। वरना कुरान करीम अलल ऐलान कहता है कि शाम को आदमी सोए थे, शाम को आदमी तमाशा करके, बदमाशियां करके, हरामखोरी करके, औरतों के साथ, लड़कों के साथ बदमाशी कर करके सोए। अच्छे भले आदमी थे, कदो कामत के मालिक थे, औरतें बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली थी, लेकिन कुरान कहता है शाम को मर्द सोए, औरतें सोई, सुबह को उठे सारे कुत्ते सुअर बन गए। फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ाशिईन।
मैं वो खुदा हूं, जरा सा इशारा करूं तमाम चीजें पलट दी जाए। इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब मैं किसी काम को करना चाहता हूं, कहता हूं हो जा, बस वो हो जाता है। तो फरमाया सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कौम समूद की बस्तियों के पास से गुजरे, कौम आद के इलाके में से गुजरे, सहाबा का लश्कर है, पाक लोगों का लश्कर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले जा रहे हैं, सरदार मोहम्मद मुस्तफा हो, काफिला सहाबा का हो। हुज़ूर करीम ने ऐलान कर दिया, ओ लोगों, कौमी समूद कौम आद की बस्तियां आ रही हैं, ख्याल करना, ठहरना नहीं, इन इलाकों में खड़ा नहीं होना, इन कुओं का पानी ना पीना। सरकार ने फरमाया इन कुओं का पानी पीने वालों की बर्बादी हो गई। उस पानी में तो बर्बादी नहीं थी, फरमाया इन बस्तियों से दौड़ के गुजरो। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को तेज कर दिया, इस्तिग़फ़ार फरमाने लगे और इतना सर मुबारक झुकाया, अल्लाह की हुजूर में इतनी आजिज़ी की कि आपकी दाढ़ी मुबारक ज़ीन को लग गई। क्या सबक दिए हैं, क्या दरस दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस ने। लेकिन आज हम हैं, हमारे दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं। बैठे कैसे, आगे जगे हो जबी ना, आगे जगी ही नहीं। ऐसी खुराक, अब जो मिलता की हाल है जी, बजी तबीयत हम ठीक ही नहीं रहती, गैस का मरीज आ, तबखीर का मरीज आ, शुगर का मरीज आ, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूं। हाँ जी, खादों ने सब कुछ खराब कर दिया, खाद आ गया, स्प्रे आ गया और ग़िज़ा सही नहीं रही, इसलिए बीमारी आम हो गई। और जिस हैसियत से हमारा तमाम कांटा बदला, लाइन बदली, उसका नाम कोई नहीं लेता, उसका नाम कोई नहीं लेता कि हराम रोजी के क्या असरात होते हैं और हलाल रोजी के क्या असरात होते हैं। आप और मैं खाद खाद करते फिरते हैं, कभी हमने ये भी सोचा कि रोजी के ज़राए क्या हैं। तो हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घर वालों ने मुझे एक लड्डू दे दिया और मैंने वो खा लिया। फरमाते खुदा खुदा करके 40 दिन गुजारे, वरना हर वक्त दिल चाहता था फला कंजरी के यहां चल, फला कंजरी के यहां चल। जिना की तरफ तबीयत आमादा थी। तहकीक करने पे पता चला कि ये लड्डू चलते चलाते किसी कंजरी के यहां से आए थे। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज मेरी तेरी निगाह जाहिर पे है, बातिन पे नहीं, कि अंदर अंदर क्या असरात हैं। हजारों वाकयात इस किस्म के हैं कि अगर हम तवज्जो करें तो पता चल जाता है। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सबका दो रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अल्लाह वाला बुजुर्ग है जो सैयदा माई हलीमा, नबी को दूध पिलाने वाली माई के कदमों में सोया हुआ है। जन्नतुल बकी में सैयदा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में सोया हुआ है। और ये वो अल्लाह वाला है कि जिसके हलक को नवाब रामपुर, नवाब दक्कन हैदराबाद, नवाब मलेर कोटला, नवाब बहावलपुर, ये बड़े बड़े मुसलमान नवाब उस जमाने के मौलाना के हलक को इस्तेमाल किया करते थे। आपस में बहस करते थे कि अगर हजम हो गया तेरा खाना तो हलाल का, अगर उल्टी हो गई तो हराम का है। यानी मौलाना मुजफ्फर हुसैन के हलक को कसौटी के तौर पे लोग इस्तेमाल किया करते थे। आज मेरा तेरा पेट गंदा नाला बना हुआ है, गटर सिस्टम बना हुआ है,
इसमें ईतर फेंक दो इंशाअल्लाह वो भी हजम, इसमें सुवर फेंक दो वो भी हजम, इसमें गंद फेंक दो वो भी हजम, हमें पता ही नहीं चलता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह पाक हमारे लिए ये सारी चीजें कहलवाता था। अर्ज किया काली कमली वाले दुआएं मांगते हैं कबूल क्यों नहीं होती, अगली उम्मत के लिए बताना था। फरमाया मेरे सहाबा कपड़ा हराम का होगा, पेट में हराम होगा, आंख में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा और इरादे में हराम होगा, और हाथ उठाएंगे और यूं कहेंगे या रब या रब या रब। हुजूर ने फरमाया तड़प तड़प के मर जाएंगे मगर खुदा उनकी बात को सुनेगा नहीं। अल्लामा इकबाल की बात याद आ गई। अब तक तो मैंने अल्लाह वालों की, और मैं जिस बुजुर्ग का जिक्र कर रहा हूं ये इतना कामिल बुजुर्ग था मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह। यूं हदीस पाक पढ़ा रहे हैं बैठे हुए, अजीब मशगला था इन हजरात का। कुरानी हदीस पाक पढ़ा रहे हैं, दारुल देवबंद में सदर मुदर्रिस थे, बुखारी शरीफ किताब बंद भी नहीं की। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब मजरूब आदमी थे ना, शुरू हो गए देवबंद और देवबंद का सारा शहर, देवबंद और देवबंद का सारा शहर, देवबंद और देवबंद का सारा शहर, मैं भी मेरी औलाद भी सारे। एक अल्लाह वाले ने उठकर यूं मुंह पे हाथ रख दिया, फरमाया हजरत बस करो। खुद ही पूछने लगे मैंने क्या कह दिया कि यूं कह रहे थे देवबंद और सारा शहर, देवबंद और सारा शहर। फरमाया अब यूं ही होगा, 15-15 जनाजे उठेंगे, एक एक वक्त में आई ताऊन की बीमारी, खुद भी और मौलाना का घराना भी, 15-15 आदमियों का जनाजा एक एक वक्त में पड़ा गया। इसलिए सारों को भीख मंगाना समझा करो। जब भी सदके की बात की अंदर शैतान उंगली मारता लगा मौलवी मांगने। खुद मौलाना का भी इंतकाल उस बीमारी में ही हो गया। इतने अल्लाह वाले लोग थे जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे, हदीस पाक पढ़ा पढ़ा करके लज्जत लिया करते थे, उनको दुरूद पाक में लज्जत आती थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा अपनी रोजी की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं, मिले सही। डॉक्टर इकबाल भी कहता है ए ताइरे लाहूती, उस रिज़्क से तो मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। उस रिज़्क से मर जाना अच्छा है, उस खाने से मर जाना अच्छा है जो तेरे परों को काट के रख दे, जो तेरी परवाज़ को खत्म कर दे, जो तेरी जिंदगी का वकार खत्म कर दे। इकबाल मरहूम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन तुम मतलब की तो ले लेते हो, कॉलेजों में स्कूलों में, और बाकी पढ़े कर देते हो। इकबाल ही तो कहता है सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। मेरा अर्ज करने का मुद्दा और मंशा ये है कि आज हम न तो ये सोचें कि रिश्वत के पैसों से कपड़ा खरीद रहे हैं, नमाज पढ़ेंगे तो कैसे होगी, ठगी मारकर ब्लैक मार्केट करके हराम कमाई करके खाना और गोश्त ला रहे हैं तो बरकत कैसे आएगी और उसमें लज्जत कैसे आएगी। इसलिए कुरान करीम ने क्या फरमा दिया, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर, जमीन में, जमा में, खुशकी में, तरी में, घरों में, मकानों में, दुकानों में, बरादरियों में, खानदानों में, कबीलों में, ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर, दफ्तरों में, बाजारों में, मार्केटों में, शहंशाह के महल में, मजदूर के घर में, मुजारे के घर में, जिम्मेदार की कोठी में। कुरान कहता है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर, फसाद मच गया जमीन में, जमा में, बाजार में, मार्केट में, मोहल्ले में, बरादरियों में फसाद हो गया, शरारत आ गई, तकरीब आ गई।
इलाहुल आलमीन, क्यों आ गई ये बीमारी, ये ना इत्तेफाकी क्यों आई, ये आपस में अदावत की बीमारी क्यों आई, खादों की वजह से आई, सपने की वजह से आई। फरमाया नहीं नहीं, बीमार का सबत आई दिन तुम्हारी बदअमालियों की वजह से, तुम्हारी करतूत की वजह से, तेरी रूह सियाही की वजह से फसाद आ गया। लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुदा कहता है फिर मैं उनको थोड़ा सा अज़ाब सिखाता हूं उनकी की हुई का। खत लिखते हैं आप रिश्तेदार को, यार को, उसे बार बार पढ़ते हैं, कोई ऐसा लफ्ज ना चला जाए जिससे रिश्तेदारी टूट जाए, जिससे यारी टूट जाए। कभी अमल करते वक्त भी ये सोचो ना, ऐसा नाम आमाल आगे ना चला जाए जिससे मेरा रिश्ता खुदा से टूट जाए। रिश्तेदारों से टूट गई, मुमकिन है और रिश्तेदार बन जाए। एक यार से टूट गई, मुमकिन है और मिल जाए। और अगर खुदा से टूट गई तो हम कहां डूब के मरेंगे। वो कौन सा रास्ता है जो अपने लिए हम आफियत के लिए आफियत का तलाश करेंगे। लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, गाने सुनते हैं सारा दिन बदमाश कंजरियों के, और इसको कोई गुनाह नहीं समझता। आंखें हराम देखती हैं, पैर हराम की तरफ चलते हैं, इस बात की कोई अलामत नहीं कि कौम हिदायत की तरफ जा रही है, लोग हिदायत की तरफ जा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे वो बिगड़, ये जो इस वक्त की नस्ल है ना हमारी छोटी पनीरी, याद रखो ये तुम्हारी कब्र पे ठोकर मारने नहीं आएंगे। इनकी तरबियत टेलीविजन और वीसीआर से हो रही है, ये तेरी कब्र पे मेरी कब्र पे थूकने नहीं आते। ये कुछ तो ख्याल करो अपनी आदत का, अपनी नस्ल का, अपने खानदान का कि ये जा किधर को रहे हैं। आजकल कोशिश करते करते काबू नहीं आता, जो कोशिश नहीं करते वहां क्या बनेगा। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरग़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह। खुदा भी बड़ा बेनियाज है, वो कहता है मैं तुझे जानता हूं। हाँ। माँ बाप का कहना मानता, मेरा कहना नहीं मानता। बिरादरी का कहना मानता है, मेरा कहना नहीं मानता। औलाद के कहने पर मजबूर होके चलता है, मैं खुदा के कहने पे नहीं चलता। अज़वाजुकुम, बीवियों के कहना मानते हो, मुझ खुदा का कहना नहीं मानते हो। बिरादरियों के सामने मजबूर हो जाते हो, मैं खुदा अज़्ज़ा वजल हय्यो क़य्यूम के सामने मजबूर नहीं होते। दुकान मकान का फायदा सोचते हो, मेरे कुरान की अजमत को तुमने कभी ना सोचा। हमसे तो वो लोग हजारों दर्जे अच्छे निकले जिनको मुसीबत और परेशानी के आलम में कुरान करीम मिला, लेकिन उन्होंने उसको खंदा पेशानी के साथ सिर्फ कबूल नहीं किया, बल्कि अपनी जानों का नजराना पेश करके उस पर अमल करके दिखला दिया। कितनी भी मुसीबत आ गई परवाह ही नहीं, एक एक जवान के 11-11 टुकड़े हो गए मगर कोई परवाह नहीं। सर्दी गर्मी का इंतजाम करना हमें आता है, कब्र का इंतजाम तुम्हारा मेरा जिब्रील करेगा? कौन करेगा? कब्र का इंतजाम कौन करे? हशर का इंतजाम कौन करे? पुलसरात का इंतजाम कौन करे? अल्लाह की अदालत में खड़ा होने का और अमाल नामे तुलने का इंतजाम कौन करे?
مجھے اور آپ کو سیشن جج کی پیشی پہ یقین ہے، وکیل کے پاس بھی جاتے ہیں، منشی کو یاد دلاتے ہیں، اور وہ آواز لگانے والے سے بھی کہہ کے آتے ہیں، 1-2 روپیہ اس کی جیب میں بھی ڈالتے ہیں کہ بھی میں سامنے بیٹھا ہوں، ذرا آواز زور سے لگائیے، کبھی منہ میں آواز لگا دے میرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر مجھے اور آپ کو فکر نہیں، اللہ کی پیشی کا فکر نہیں، قیامت کا فکر نہیں، خداوند کریم کے سامنے جب ہم سب پیش ہوں گے اس وقت کا کوئی فکر نہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں نے سوچا میں جاؤں اپنے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، وہ کتنے مقدروں والے لوگ تھے جو دن میں بھی آقا کی خدمت میں، رات کو بھی آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں جو گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ سرکار نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء ساری رات نماز میں قرآن پڑھتا ہے، امتی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، اور جنت کی چابی جیب میں لیے پھرتا ہے، نماز نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی سرکار کے پیچھے نیت باندھ لی، تہجد کا وقت تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سمجھا تھا چلو 2, 4, 10, 20 آیتوں پر حضور رکوع سجدہ فرمائیں گے، رکعت ہو جائے گی۔ ساری سورت بقرہ تلاوت فرمائی، 2.5 سپاروں کی ہے، 2.5 سپاروں کی ہے سورت بقرہ ساری، اور یوں تھوڑے ہی جس طرح ہم پڑھتے ہیں گدبد 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 کر کے، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والا ابو ہریرہ ہو، ترتیل سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بڑا یقین تھا کہ سورت ختم ہوئی، اب تو رکوع سجدہ ہو گئی، مگر آپ نے سورت کے ختم پر 2, 3, 4 مرتبہ فرمایا اللہم لک الحمد، مولا تیری تعریف کرتا ہوں، تو ہی تعریفوں کے قابل ہے۔ پھر آل عمران شروع کر دی، 1.25 سپارے کی وہ ہے، 3.25 سپارے ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا پکا یقین تھا کہ اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکعت ختم ہوئے گی، آپ نے سورت النساء شروع فرما دی۔ 5.25 پارے ایک رکعت میں اس نبی نے پڑھے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کا تو امتی بنا پھرتا ہے، اور اس نے ایک رکعت میں 5.25 سپارے پڑھے، تجھے ایک رکعت پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو میں نے اپنے آقا کو دیکھا، سارے قدم مبارک ورم سے سوج گئے تھے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے سوج کر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شوہر، سبحان اللہ، کسی کا شوہر ڈی سی، کسی کا شوہر کمشنر، کسی کا شوہر گورنر، اور کسی کا شوہر صدر، کسی کا گھروالا وزیر، عائشہ صدیقہ کروڑوں مبارک ہو تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ، تیرا خامن امام الانبیاء، تیرا شوہر کالی کملی والا، تیرا شوہر وہ ہے جو عرش عظیم پہ بمائے جوتوں کے تشریف لے گیا۔ صبح کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی تو قدم مبارک سوجے ہوئے، اللہ غنی، عرض کرنے لگی میرے آقا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی بخشش کا، مغفرت کا اللہ پاک نے قرآن میں بھی اعلان کر دیا، اور آپ نبی معصوم ہوتا ہے، آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ساری رات قرآن پڑھتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا جواب دیا ہے؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایسا افلا اکون عبدا شکورا، ایسا اللہ نے مجھے امام الانبیاء جو بنایا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اس
उसने मुझे इतना अजीम नबी जो बनाया, नबियों का भी इमाम बना दिया 1,24,000 का, मैं उसका शुक्र अदा न करूं? इसलिए अर्ज कर रहा हूं, शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज इतनी गफलत है, इतनी बेपरवाही है और इस कदर सुस्ती है कि जब हम अपना नामे आमाल देखेंगे उस वक्त पता चलेगा कि सारी जिंदगी हम करते क्या रहे। इसलिए कुरान करीम ने ललकारा, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। मर्द औरत जो अमल भी नेक करते हैं, अल्लाह पाक ने हलाल कर दिया। बाज़ अमल ऐसे हो जाते हैं दुनिया ही में उनकी लज्जत, उनका मिठास, उनकी हलावत, उनका कैफ, उनका सुरूर, उनका मजा आने लग जाता है, दुनिया ही में लज्जत आने लग जाती है। और बुराई भी दुनिया ही में महसूस होने लग जाती है। मेरा अर्ज करने का मकसद और मंशा और मतलब यह है कि इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना ठीक है, सवाब तो सुनने का मिलेगा, लेकिन फायदा उस वक्त ही होगा जब हम उसको अमली शक्ल देंगे। कुरान करीम ने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह से हमें समझाया और हमारी आखिरत के लिए और दुनिया की भलाइयों के लिए कोशिश फरमाई, दुआएं भी फरमाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको सही अमल तैयार करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए संभल संभल के चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आपने कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का एक मौजू समाप्त फरमाया, अज़ाब जहन्नम के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइंदा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारी वीडियो को लाइक करें और नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुंच सके। हमारा खालिस सिर्फ ये इरादा है कि अल्लाह हर मुसलमान के दिल में उसकी अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाए, दीन और इस्लाम हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा, देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे। पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के नहीं। ज़कात दो, ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो बातें करता है ये नबी, नऊज़ुबिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता है। अल्लाह भूखा है कोई? अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी? वो कोई भूखा मर जाए? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करता है, सानू की है, साडा की जानता, अपनी जुबान गंदी पिया करता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।